ان کو محبوب رب العالمین لکھا ہے میرے امام نے، محبوب رب العالمین. اب سننا، غور کرنا. عائشہ صدیقہ امی جان جس کی طہارت اور برات کے لیے سورہ نور کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے. میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. دھیان سے سنو. اب وہی پیاری امی جان، مومنوں کی امی جان، اپنے گھر کے دروازوں پر نہیں بلکہ دیواروں پر پردے لٹکا دیتی. توجہ، دیواروں پر پردے، توجہ، دیواروں پر پردے. دھیان، بہنوں کی بھی توجہ، دیواروں پر پردے. سرکار نے دیکھا اماں عائشہ کے حجرے کی دیواروں پہ پردے. حضور نے چہرہ پھیر لیا. توجہ، چہرہ پھیر لیا. اماں عائشہ نے کہا حضور ناراض ہے؟ فرمایا عائشہ ہم لوگ یہود و نصارہ کی طرح دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے. منہ پھیر لیا، چہرہ پھیر. دوسری محبوب شخصیت حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ محبوب مقبول کوئی ہستی ہے بالاتفاق اہل سنت کے نزدیک، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ رقیہ عذرا ام ابیہا ام الحسنین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. اتنی محبت کی، اتنی محبت کہ جس وقت سیدہ فاطمہ تشریف لاتی حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. لیکن اب دل کے کانوں سے سننا، نبی کی رحمت سن کر کے اپنے آپ کو فریب میں ڈالنے والوں، نبی کی غیرت پر بھی توجہ کرو. ایک دن سیدہ فاطمۃ الزہرا نے سونے کے کنگن پہن. سونے کے کنگن عورتوں کے لیے حلال جائز ہے نا؟ صحیح بات. میری بات کو غلط رنگ مت دینا، میں بڑی خاص بات کرنے چاہتا. سونے کے کنگن پہن، سونے کے کنگن پہن لے. کس نے؟ کس نے؟ کس نے؟ جس کے لیے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ہمارے سنت کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کی شان، ان کی حقیقت، ان کی طہارت، ان کی عزت، ان کی حرمت، ان کی بزرگی کوئی لغت بیان نہیں کر سکتی. اس لیے بیان نہیں کر سکتی کہ رسول اللہ نے فرمایا بدا تو منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ہم کہتے ہیں جگر کے ٹکڑے کا مطلب کیا؟ رسول اللہ جس زمین کی مٹی پر پیر رکھ کر اس کو اپنے جسم سے چمٹا لے، قریب کر لے، وہ مٹی کعبے سے بھی افضل ہو جائے، عرش اعظم سے بھی افضل ہو جائے، تو مٹی جسم سے مس ہو کر کعبے اور عرش سے افضل ہو جاتی ہے. فاطمۃ الزہرا نبی کے جسم سے لگنے والی مٹی کا نام نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کا نام ہے. جب رسول اللہ کے جسم سے لگنے والی مٹی کی شان بیان نہیں ہو سکتی تو پھر سیدہ جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے اسی سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے. حلال ہے سب کے لیے، ہر عورت پہن سکتی ہے. کتنا پہن سکتی ہے؟ جتنا چاہے پہن سکتی ہے. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل. سونے کے کنگن سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں دیکھا. دھیان دینا، گفتگو اینڈ کی طرف جا رہی، کبھی بھی گفتگو ختم ہو سکتی ہے، توجہ دینا. سونے کے کنگن مادر حسنین نے پہنا. کون؟ فاطمہ، جس کے لیے فرمایا جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی ہو، جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض ہے نا. تو سوچو، غور کرو. اس سیدہ پاک نے سونے کے کنگن پہنے. حضور نے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے، منہ پھیر لی. ہائے ہائے. جگر مراد آبادی نے کہا تھا نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. سیدہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ کر آقا نے چہرہ پھیر لی. سیدہ کے گھر میں نہیں گئے، اپنے گھر گئے. بابا کا مزاج سمجھتی تھی. بلال کو بلایا، بلال
मेरे बाबा, मेरी जान, मेरे ईमान की जान। रुख अनवर फेर कर घर चले गए इसी सोने के कंगन की वजह से। कंगन उतारे, ये लो और जाकर मदीने के गरीबों में बेच के तकसीम कर दो, जिससे बाबा चेहरा फेर ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाराज हो गए, वल्लाह मेरे आका अपनी शहजादी से कभी नाराज नहीं हुए, ये मेरा अकीदा है। लेकिन आप गौर करो, घर जाके सोचना, सोने के कंगन जो ना नाजायज है ना हराम है, सिर्फ ये कि नबी के जिगर गोशे के शायान शान नहीं है। अगर लोग सैयदा के हाथ में सोने के कंगन देखेंगे तो हो सकता है कोई गरीब की बेटी अपने बाप से कहेगी, बाबा जब नबी की बेटी ने सोना पहना तो मुझे भी सोना चाहिए। हुजूर को शायद हमारी गुर्बत का ख्याल था, इसलिए फरमाया मैं तेरे हाथ में सोना नहीं देखता, ताकि जब मेरे किसी गरीब उम्मती की बेटी के हाथ खाली होंगे तो बाप बेटी को कहेगा, बेटी गुर्बत से नाराज ना हो, फातिमा के हाथों में कभी सोने के कंगन नहीं आए तो मैं तुझे कैसे पहना दूं। बस इसी पर हमारी गुर्बत पर सुन्नत का पैरा बिठा दिया, सुन्नत की चादर डाल दी। लेकिन गौर से सुनो सुन्नियो, आशिकाने रसूल, साबिर पाक पर तन मन धन कुर्बान करने वालों, गौस पाक के नाम के नारे लगाने वालों, सैयदा के हाथ में सोने के कंगन देख चेहरा फेरा वापस हो गए। नहीं गए सैयदा के हुजरे में, सैयदा ने कंगन वापस गरीबों में तकसीम करवा दी। थोड़ी देर के बाद आए तो कंगन हाथ में नहीं थे, अंदर दाखिल हुए। सैयदा ने से पूछा, क्या हुए कंगन? बाबा जिससे आप चेहरा फेर लें मैंने वो गरीबों में तकसीम कर दिए। सरकार ने पेशानी चूम के कहा, मेरी शहजादी, मेरी लगते जिगर, मैं तुम्हें इस हालत में देखना चाहता हूँ जिस हालत में मैं हूँ। अब आपसे पूछता हूँ, इतनी बात अगर दो समझ में आ गई, बहुत तफसील है लेकिन दो समझ में आ गई। अब सुनना, जिंदा रहे, जिंदगी गुजारी जैसे गुजारी, दाढ़ियां मुंडाई, गटरों में फिकवाई, गाने सुने, फिल्में देखी, सब किया, हराम खाया, झूठ बोला, वादा खिलाफी की, औरतों के साथ बदचलन करे, मस्ती में रहे, ऐश में रहे, इशरत में रहे, नबी की आंखों की ठंडक से गफलत बरतते रहे। जो कर रहे हो हमारे नबी, जो नबी को मुर्दा मानते हैं जानते ये उनका अपना मैटर है, लेकिन मैं उस मसलक का मानने वाला हूं। मेरे मसलक में नबी जिंदा, सिर्फ जिंदा नहीं, हमारे जान से ज्यादा करीब, सिर्फ जान से ज्यादा करीब नहीं, कायनात का जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा सब मेरे नबी की निगाहों के सामने है। शश जहद समतो मुकाबिल, शबो रोज एक ही हाल, धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की। जो कर रहे हो रात को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, दिन को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, शाम को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, पूरी जिंदगी में जो कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं। अब सुनना, गौर से सुनना, कौन सा वक्त आया? मौत का वक्त आया, मरने का वक्त आया। किसका? अमीनुल कादरी का। किसका? आप लोगों का। घबराना मत, याद रखना, अच्छे से याद रखना, मौत आनी है। मौत का इनकार करोगे तो भी मौत आएगी, मौत की तैयारी करोगे तो भी मौत आएगी, तैयारी न करोगे तो भी मौत आएगी, पाप करोगे तो भी मौत आएगी, नेकियां करोगे तो भी मौत आएगी, कुरान को भूल जाओगे तो भी मौत आएगी, कुरान याद रखोगे तो भी मौत आएगी। अब मौत आई, जिस्म का रिश्ता तसव्वुर करो, हम अपने आप को सब अपना अपना तसव्वुर करें, हम अपने आप का तसव्वुर करें। एक चहलुम की महफिल है, जरा तवज्जो करना बहनों की भी। रूह का रिश्ता जिस्म से टूट गया, यानी हम मर गए, रूह निकल गई जिस्म से। फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। जिस नाम के लिए बहुत मरते थे ना, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम, मरने के बाद सबसे पहले आदमी का नाम छीना जाता है। यानी अमीनुल कादरी मरेगा तो लोग ये नहीं कहेंगे अमीनुल कादरी को उठाओ, अमीनुल कादरी को नहलाओ, अमीनुल कादरी को कहना दो। क्या कहेंगे? मैयत को उठाओ, मैयत को बिठाओ, मैयत को नहलाओ, मैयत को कांधा दो। देखो ए इंसान, तू नाम के लिए कितना मरता है, लेकिन सबसे पहले मरने के बाद क्या छीना गया? तेरा नाम छीना गया। अल्लाह अकबर। ये इबरत की बात है। मर गए, उसके बाद गुस्ल दिया, अपने हाथ से नहा भी नहीं सकते। क्या जिंदगी है, क्या मजबूरियां हैं। आए थे तो भी दूसरों ने
नहलाया, जा रहे हैं तो भी दूसरे नहला रहे, आए थे तो भी कुछ लेकर नहीं आए थे, जा रहे हैं तो भी कुछ लेकर नहीं जा रहे। कुरान कहता है ला तंसा नसीब का मिनत दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के अपने साथ दुनिया से कुछ नहीं ले जाओगे। अब सोचो कफन में लपेट दिए गए, अल्लाह अल्लाह, जब ईद पे कपड़े खरीदने जाते थे, शादियों पे कपड़े खरीदने जाते थे तो चार चार दुकानें ढूंढते थे, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये, लेकिन हाय हाय जो आखिरी मर्तबा कपड़े पहनाए जा रहे हैं वो पसंद के भी नहीं है, वो कीमती भी नहीं है, और कफन में लपेट दिए गए, खुशबू भी पसंद की नहीं, काफूर बदन पे डाल दिया गया, काफूर बदन पे डाला गया। अब सोचो लोगों ने कंधे पे उठाया। हदीस पाक में आता है जब लोग मैयत पे रोते हैं तो मैयत कहती है मुझ पे रोने वालों मुझ पे मत रो, अपने अहवाल पर रो, अपने आमाल पर रो। अरे दुनिया ने मुझे धोखा दिया, दुनिया तुमको धोखा न दे। और उसके बाद अब कब्र में ले जाकर डाल दिया। तसव्वुर करना बात एंड की तरफ जारी, कब्र में ले जाकर के डाल दिया। 2 गज जमीन, बिस्तर नहीं, चादर नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई एसी नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं मेरे भाइयों, बल्कि ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी, करवट बदलने की भी जगह नहीं। और उसके बाद मनो मिट्टी के नीचे दोस्त दबा कर चले, सब धड़ाधड़ मुंह पे मिट्टी डाल रहे हैं, वजूद पे मिट्टी डाल रहे हैं। बोलो बाप भी डाल रहा है, भाई भी डाल रहे हैं। क्या मजबूरियां हैं, क्या हालात हैं, क्या दुनिया की बेरुखी है, क्या हालात की सतम ज़रीफी है। अल्लाह अल्लाह, हाथों में उठाने वाले, हाथों को चूमने वाले, पेशानियों को बोसा देने वाले, जिंदाबाद के नारे लगाने वाले मुंह पर मिट्टी डाल रहे हैं। ऐसे में हदीस पाक में आता है कब्र में इतना अंधेरा होता है, कब्र में इतना अंधेरा होता है, इतना अंधेरा। मेरे आका फरमाते हैं सीधे हाथ को उल्टा हाथ सुजाई नहीं देता, एक हाथ को दूसरा हाथ सुजाई नहीं देता। जब लोग मुंह फेर करके जाते हैं, दोस्त मुंह फेर के गए, बाप मुंह फेर के गया, बच्चे मुंह फेर के गए, उस वक्त तो मैयत सोचती है मेरे दोस्तों ऐसे छोड़ के जा रहे हो जैसे कभी पहचानते नहीं। हाय हाय क्या बेबसी होगी, हाय हाय क्या बेकसी होगी। दुनिया दुनिया दुनिया, मेरा माल, मेरी दुकान, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब गैर हो गए, सब पराये हो गए, सब अजनबी हो गए, और कब्र में अकेला इंसान है, अकेला इंसान। और उस वक्त तो सोच रहे दोस्तों तुम भी जा रहे हो, भाइयों तुम भी जा रहे हो, अब्बा जी तुम भी जा रहे हो, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब जा। जब सब चले जाते हैं एक प्यारी सी, एक खूबसूरत सी, एक मध्यम सी आवाज आती है, मेरे गुलाम, मेरे उम्मती, दोस्त जा रहा है जाने दे, बाबा जा रहा है जाने दे, चचा जा रहा है जाने दे, अहबाब जा रहे हैं जाने दे, सब जा रहे हैं जाने दे, अब मैं आऊंगा। सब चले गए, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। कौन कह रहा है? मेरे गुलाम, मेरे उम्मती, मैं आऊंगा। क्यों आएंगे आप? तेरी कब्र जगमगाने आऊंगा, तेरी कब्र चमकाने आऊंगा। मेरे इमाम कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अब समझ लो आप और हम किस में बनने वाले हैं, आपको फैसला करना है। आका आए, कब्र में तशरीफ लाए। अब सोचना, गौर करना, सैयदा फातिमा के हाथ में सोने के कंगन देखे तो गैरते मोहम्मदी मुंह फेर कर चली गई। अम्मा आयशा के घर में हुजरे में पर्दे देखे लटके हुए, गैरते मोहम्मदी मुंह फेर के चली गई। सोचो तो सही, इतने बड़े बड़े महबूब लोग, हराम काम नहीं, नाजायज काम नहीं, सिर्फ शायान शान न हो तो रसूलुल्लाह वहाँ से मुंह फेर के चले जाते हैं। जिसने पूरी ज़िंदगी कभी नमाज भी नहीं पढ़ी थी, जो जुमा की 2 रकात पढ़ के ऐसे भाग जाता था जैसे स्कूल के बच्चे स्कूल से भागते हैं, जो दाढ़ियाँ रखने में शर्माता था और काफिरों और मुशरिकों जैसा चेहरा बनाता था और दाढ़ियाँ मुड़ाकर सुन्नते रसूल को गटर में फेंकवाता था। अरे तुम्हारे चेहरे पर ये चलने वाला वस्तरा बाद में चलता है, पहले ये रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुँचाता है, हुजूर के दिल को अजियत पहुँचाता है। हाँ हाँ, जिना के अड्डों पे जाने वाला, शराब के अड्डों पे जाने वाला, हराम खाने वाला, जब हुजूर उसकी कब्र में आएंगे और फिर देखकर, अल्लाह न करे, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, हुजूर ने देखा और देखकर अल्लाह न करे ये फरमा दिया, ओ मक्कार, ओ मुनाफिक, मेरी उम्मती कहलाकर, मेरा उम्मती कहलाकर तेरे घर की बेटियां बेपर्दा आवारागर्दी करती थी, तू सीरियल अपनी बेटियों के साथ बैठ के देखता था, तू पूरी जिंदगी कभी नमाज के लिए नहीं जाता था, जुमा के लिए 2 रकात पढ़ के भाग जाता था, और हुजूर अपनी गैरत की वजह से
चेहरा फेर। हुजूर अपनी गैरत की वजह से चेहरा फेर ले और नाराज होकर अपनी कब्र से वापस चले जाए। तसव्वुर करो, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिल न दिखाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन और वो लम्हा न दिखाए कि हुजूर उसकी कब्र से चेहरा फेर के जाए। उनके करम से ये उम्मीद तो नहीं, लेकिन उनकी गैरत बहुत नाजुक है। जब वो उजरे आयशा से चेहरा फेर के जा सकते हैं गैरत की वजह से, जब वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा के कंगन देखकर चेहरे अनवर को फेर लेते तालीम उम्मत के लिए, अगर हमने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, अगर फेर कर चले जाए, बोलो कहां जाओ? किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? किसके दरवाजे पे शफाअत की भीख मांगोगे? किसे मनाओगे? कहां जाओगे? वहां से तो कहीं जा भी नहीं सकते। कब पछताओगे? कितना पछताओगे? पछताने का मौका भी खत्म हो चुका रहेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे। क़यामत में अगर मान गया, आपकी मर्जी पे है। रसूलुल्लाह की रहमत पर तवज्जो की है, हुजूर की गैरत पर भी तवज्जो करें और सोचे कि मेरी कब्र से वो वापस नहीं जाना चाहिए नाराज होकर। उसके लिए क्या कर सकते हैं? आज सच्ची तौबा करें। हजरत कारी अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिसने पूरी जिंदगी साबिर पाक और गौस पाक की मोहब्बत में जिंदगी गुजारी, इश्क साबिर पाक की शान का कि साबिर पाक का दीदार नसीब हुआ, साबिर पाक की शफकतें नसीब हुई। जो साहिब करामत थे, मुझसे उनके शहजादों ने कहा कि उनकी ज़िंदगी पे कुछ कहिए, लेकिन इत्तेफाक से मेरे पास उनकी कोई किताब सीरत की ना पहुंच सकी, इसलिए मैं सिर्फ इतना कह जाता हूँ, किसी के लिए करामत हो, ज़िंदगी हो, सवानी उम्री हो, बयान हो ना हो, किसी के बड़ा होने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि वो रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक हो। और जो हुजूर का सच्चा आशिक होता है वो सब कुछ होता है, फिर वहाँ कहने की कोई बात नहीं होती। इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा और उनकी ज़िंदगी पढ़ने का मौका मिलेगा तो हम उनकी ज़िंदगी पर कभी गुफ्तगू करेंगे। बस इतना ही, नबी की रहमत तो याद रखा है, नबी की गैरत पर भी तवज्जो करो और उसके लिए सोचो, आज सच्ची तौबा करो। माशाअल्लाह साबिर पाक के साहिब सज्जादा मौजूद है, इसी तरीके से कारी अब्दुल लतीफ़ साहब के शहजादगान मौजूद है, अल्लामा गुलाम नबी और ये सारे उलमा मशाइख मौजूद है, और फिर साहिब मज़ार मौजूद है। इतने बड़े आशिक रसूल, इतने बड़े साबिर पाक के चहीते लाडले, आप इनकी मौजूदगी में तौबा कर लो। आज से पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज अपने अल्लाह को मना लो और अल्लाह से कहो मौला भूल हुई, अपने नबी से माफ़ी मांग लो, या रसूल अल्लाह भूल हुई, आज के बाद अब हम आपको नाराज़ करने वाला कोई काम नहीं करेंगे। अल्लाह से कहो अल्लाह हम तुझे नाराज़ करने वाला कोई काम नहीं करेंगे। मेरा अल्लाह पता है अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना सबसे ज्यादा आसान है। सिर्फ निदामत के 2 आंसू बहा लो, मेरा अल्लाह राजी हो जाएगा। हुजूर को भी मनाना बहुत आसान है, आका से माफी मांग लो, और आका को मनाने के लिए मदीने तक जाना जरूरी नहीं है। अल्लाह तौफीक दे तो वहां भी जाओ, लेकिन आका को मनाने के लिए, क्योंकि वो हमारी जान से ज्यादा करीब है। अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, आंखें बंद करो, हुजूर के जालियों का गुंबद का तसव्वुर करो और कहो या रसूल अल्लाह बहुत दूर चला गया था आपसे, आका हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दें। अब आज के बाद आपका दिल दुखाने वाला काम नहीं करूंगा, कोई गुनाह नहीं करूंगा। हुजूर की रजा के लिए जियो, चेहरों से दाढ़ियां मत कटाओ, चेहरों पे वस्तुरा मत लगाओ। कल से नहीं, आज से, अभी जिसने इशा नहीं पढ़ी है वो पहला काम यहाँ से उठ करके जाएगा तो इशा पढ़ेगा और फिर फजर भी पढ़ेगा। नमाज के पाबंद बनिए, आखिरत की तैयारी कीजिए, कब्र की तैयारी कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी। क्या मैं उम्मीद करता हूँ सब तौबा करके अपने आप को बदलेंगे इंशाअल्लाह? जरा बताएं कितने लोग बदलेंगे? सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबको तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। हज़रत साहिब सज्जादा साहब फरमा रहे हैं कि हज़रत के बड़े साहबजादे कारी लुत्फ़ुर रहमान साहब
ان کی آج برسی بھی ہے، یعنی حفظ الرحمان صاحب کا چہلم بھی ہے، حضرت لطف الرحمان صاحب کی برسی بھی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سارے بزرگوں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہانیں عطا فرمائے۔ میں آپ کا شوق دیکھ کر اور باتیں کرتا، لیکن چونکہ مجھے خود بھی وقت پر یہاں سے روانہ ہونا ہے، اسی لیے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں ان دو اشعار پر کہ کامیاب کون ہے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔